जय हिंद। जय हिंद बच्चों। अब ऑलमोस्ट सभी स्कूल में फेयरवेल खत्म हो गया। गिनी चुनी स्कूल है जिनमें कल फेयरवेल हो जाने वाला है। फेयरवेल के बारे में मैं अब ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। फेयरवेल के बाद तुरंत 2 या 3 दिन में तुम्हारी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। 2 मार्च मराठी मीडियम की एग्जाम स्टार्ट हो रही है और 3 मार्च से इंग्लिश मीडियम की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो 2 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। द क्वेश्चन अराइज इन माई माइंड, स्टूडेंट, when you are going to become serious, still you are going to school with full of enjoyment, still you are going to school for the fun, there is no seriousness on your faces. Coming school, going home, you are spending time is money one side, I say time is God one side. Means after 3rd March, this speech for 10th standard student, after 3rd March, time will be like God when you sit in the exam hall. Time is money. Leave that old concept. Come to new concept. Time is God. If you value time today, 100% I guarantee you that God will return to you. God will also value you. When you are in exam hall, when you don't remember anything, that time God himself will not present in front of you. But anyhow, your mind will work properly and you will get the answer. Life is full of unpredict. No one can predict anything, what will happen tomorrow. But what is in our hand? Constant practice, hard work with full dedication. That will give you a right path. जिंदगी में पूरी जिंदगी अनक्लियर है और हम चाहते हैं जिंदगी से कि पूरी जिंदगी स्पष्ट होनी चाहिए। संभव नहीं। यही तो बड़ी ताकत है जिंदगी की। थिंग्स आर अनक्लियर, वी वांट टू मेक इट क्लियर, वी वांट एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग क्लियर, बट यू आर नॉट गेटिंग। दैट्स व्हाई एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ एवरीवन, ईच अदर। व्हाई? व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नो वन नोज, but someone else give the answer. Means define, everyone happy. If defined question comes in front of me, I am happy. If undefined question comes, a question marks raise, and the person who answer undefined question, he becomes special from others. Example, as a math teacher, 2 plus 2 4. Is there any trace on your mind? No. Define. 5 plus 5 10. Now see what life expect from you. 10 plus 3 equal to 1. Sir, 10 plus 3 equal to 1. It's a question for you. Many of them will think it's undefined, sir. In mathematics it is not allowed. But I say think beyond mathematics and answer my question. If you think proper, you will get the answer. Yes, sir, 10 plus 3 equal to 1. In mathematics it is not allowed. But when we think about possibility, yes, there is one possibility. When the 10 plus 3 equal to 13, 13 is equal to 1. When? If that condition, if we apply to the time or watch, if that watch is of 24 hour, 10 plus 3 equal to 13 and 13 is nothing but 1 hour. Yes. Now, this question is undefined in mathematics book. जिंदगी हमसे यही चाहती है। राजा बनना हर किसी का ख्वाब है, पर राजा बनने के लिए जो तुम्हारे अंदर क्षमता, तुम्हारी सोच, सही समय पे तुम सोचते हो क्या? नहीं। इसलिए हम राजा नहीं बनते, हम नौकर बनते हैं। एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, गलत। एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, किसी के घर की ये सोचे, उस बच्चे की भी सोचे कि मेरे को एजुकेशन प्राप्त करके किसी के पास नौकरी करनी है और वही उसका अंतिम उद्देश्य है, तो यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। एजुकेशन टू मेक इंप्रूवमेंट इन योर सेल्फ, व्हेन यू मेक सम चेंज इन योर सेल्फ, ट्राई टू मेक सम चेंज इन सोसाइटी, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन। पर नहीं, हार्ड वर्क विल नेवर टेक यू एट ए हाई पोजिशन। हार्ड वर्क will never take you at a high position. Hard work will make you survive. If you are working hard work in the life, you will survive. जो कामगार लोग होते हैं,
खेत में क्या करते हैं, दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जो हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, सिर्फ वो सर्वाइव करते हैं, जो बेसिक नीड्स है उसमें वो खुश है। फिर ऊपर जाने के लिए हार्ड वर्क करनी है तो पढ़ाई करो, उसके फ्रूट्स तुरंत नहीं है, और एक बार कुछ चीज ब्रेन में डाइजेस्ट होने तुम सीख गए ना, तुम्हें नींद नहीं आने वाली। अपना ब्रेन इतना फास्ट काम करता है, वो हद से भी ज्यादा, बस आपको पता नहीं है, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, और आपने कभी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। जिस दिन आपको टच हुआ कि मैंने 3-4 घंटे एक जगह पे बिताए, उसका मतलब क्या होगा, आप उस किताब को और अपने ब्रेन को कनेक्ट करते थे। व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट द बुक एंड योर ब्रेन in a proper way, automatic times run. When time does not run, you open the book and your brain is unable to connect that words, or you are unknown about that book. That time you feel sleepy, you feel that time is not running, you are getting bored. Try to be connectivity. सर फिर कनेक्टिविटी कैसे आने वाली है, यही तो खासियत है। फिर आपको कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको बार बार किताबें, एक ही किताब नहीं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग नॉलेज गेन करो। नॉलेज गेन करने से मेमोरी में कहीं तो भी स्टोर होता है। जब फ्री टाइम है और जब हमने कोई नई किताब भी ली पढ़ने को, तब भी हमें इंटरेस्ट आता है। जो नॉलेज फीड है ब्रेन के अंदर, नॉलेज ब्रेन में स्टोर हो गई ना, तो हमने कोई भी किताब पढ़ी तो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होता है, कनेक्टिविटी आती है, और कनेक्टिविटी आने से हमारी सोच बढ़ती है। अब ये सब भी नहीं बड़बड़ की 5-6 मिनट, इसका पर्पस क्या है, आप जून से लेके फरवरी तक आपने जो भी भागदौड़ की, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, होमवर्क करना, और गिने चुने बच्चों ने उसको डाइजेस्ट किया, बोलो तो मेमोराइज किया, गिने चुने बच्चों ने, और 80% बच्चों ने बस एक ही काम किया, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, होमवर्क करना, सो जाना और नोटबुक चेक करना, उन्होंने डाइजेस्ट नहीं किया है। अब उन प्यारे बच्चों के लिए अगर तुम्हें वो डाइजेस्ट करना है, तो जो कंफर्ट जोन था तुम्हारा, क्या कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करता, 3 घंटे पढ़ाई करता हो तो चलेगा नहीं। अब आपको तुम्हारा पढ़ने का टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड दी टाइम पीरियड। कितना, 2 घंटा, 3 घंटा, अब वो तो चिल्लर हो गया। आपको 8, 9, 10 घंटे एक जगह पे स्टेबल होना पड़ेगा, एक साथ। 3 घंटे पढ़ाई करो, आधा घंटे का ब्रेक लो, घूमो बाहर, जाके आओ, टीवी देखो, फिर से बैठो, 3 घंटा बैठो, फिर से ब्रेक लो। अब अगर किसी के मन में दुविधा आ रही कि हाँ 9 घंटे 10 घंटे एक जगह बैठना, अरे आराम से बैठोगे तुम, तुम्हारे माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में सब स्टोर है। जब तुम स्कूल जाते हो तो टीचर सिखाती थी, हालांकि तुमने ध्यान नहीं दिया, पर सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे सब देखा सुना कहीं तो भी, बस आपको याद नहीं आ रहा हो। पर अगर आज या कल से या अभी से तुमने स्टार्ट किया कि नहीं, सर ने कहा मेरे को पढ़ाई करनी है, एक बार तुम किताब खोल के देखो, थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रेस आएगा आपके ब्रेन पे, जरूर, बिल्कुल सही है, पर बुक खोलो, सोचने की कोशिश करो, बुक, पेन, नोटबुक लेके बैठो, सम सॉल्व करने की आदत डालो, और फिर मेरे को फोन लगा कि बोलो कि नहीं सर हम बोर है। नहीं, अगर तुम कनेक्टिविटी में आ गए तो मैं कहता हूँ 10 आवर्स तुम आराम से बैठोगे, 3 घंटा गैप, 2 घंटा गैप, आधे घंटा गैप दो, पर आप इधर उधर मत जाओ, और किसी की राह मत देखो या किसी का सलाह मत लो। अब जो भी हो गया 8-6 महीने में हो गया, अब जो भी है खुद के दम पे रिस्क उठानी पड़ेंगे। क्यों रिस्क उठानी है? लाइफ इज चैलेंजिंग, लाइफ इज अनक्लियर, इसलिए हमें रिस्क उठानी है। अब रिस्क किसको उठाओ तुम? जो कंफर्ट जोन में, उसके बाहर आ जाओ, 8-10 घंटे पढ़ाई करो, खुद ही सॉल्यूशन देने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अब जो नहीं आ रहा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बस इसकी वजह से मेरे मार्क्स जाने वाले हैं, मैं बहुत अच्छा स्कोर करने वाला हूं, तो किसी टीचर के पास जाओ, क्योंकि किसी टीचर के पास जाके उससे बात करना, मिलना अभी सही नहीं, बहुत टाइम पास हो रहा। एक आधा मार्क्स छूट रहा है तो छूटने दो, पर ट्राई टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स बाय योरसेल्फ। खुद की पढ़ाई करो, खुद में इंप्रूवमेंट करो, घर से बाहर निकलो ही मत। कब तक?
एग्जाम होने तक। हाँ, एग्जाम के दिन पेपर को आओ, बड़े खुशी खुशी से आओ, पेपर लिख दो, घर पे जाओ, फिर से पढ़ाई करो। कितनी? बस मार्च महीना। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून का आधा, 2.5 महीना है, 2.5 मंथ स्टिल इन योर हैंड। आपको जो करना है बाद में करो। आपको वीकनेस भी आ गया है इस महीने में, तो आप बढ़ने, कोई किसी को कुछ होने वाला नहीं, ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं होने वाली। उसके बाद तुम रिकवर हो सकते। पर अभी अगर टाइम बिताया, टाइम इज गॉड, अगर तुमने समय की कदर की, तो दावे के साथ कहता हूं एग्जाम हॉल में समय भी आपकी कदर करेगा। बोले तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको मुसीबत में नहीं डालेगा। अगर मुसीबत आ रही तो उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेगा समय। बोले तो खुद को ही इंस्पायर रखो, अपने आप आंसर आते हैं। तो किसी के पास जाओ मत, फेयरवेल हो गया खत्म। तो जिस दिन खत्म हो गया उसका टॉपिक भी वहीं पे स्टॉप करो। अगर आपको बहुत याद आ रही है, एग्जाम होने के बाद 1-2 दिन या 8 दिन कहीं घूमने जाओ, उसके बारे में डिस्कस करो। आप किसी के ही बारे में डिस्कस मत करो, एक ही काम करो, फोकस, स्टडी स्टडी स्टडी। जो खुद की स्टडी है वही तुम्हें एक अच्छे मार्क्स देने वाले हैं। अरे अच्छे मार्क्स आ गए, तुम अच्छे कॉलेज में जाने वाले हैं, अच्छे कॉलेज में गए तो अच्छे फ्रेंड्स होने वाले हैं। कम मार्क्स आ गए तो नीचे स्तर का कॉलेज मिलेगा, वहां की आपकी फ्रेंडशिप भी वैसी होने वाली है। हम किसके सर्कल में आते हैं उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अगर हम अच्छे फ्रेंड्स के सर्कल में आ गए, अगर कुछ कमियां हैं तो अपने आप सुधर जाती है। अगर मैं ऐसे सर्कल में आ गया कि वहां पे सब कमियां है, जो मेरी अच्छाई है वो भी कमी में हो जाती है। इसलिए अच्छे मार्क्स लाओ। 10 के जो मार्क्स है वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कि आप कोई को 90% आ गया कि टॉप करने वाला जिंदगी में, बिल्कुल नहीं। और किसी को 35 आ गए तो जिंदगी भर ढ बचा रहने वाला है, बिल्कुल नहीं। बस आपके आगे की जो पाथ है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे कि सही रास्ते पे आप जाने वाले हो। नहीं तो फिर से आपको एफर्ट्स उठाने पड़ेंगे। 11th-12th में एफर्ट्स, ग्रेजुएशन में एफर्ट्स, नहीं बोल के हाँ नहीं, दुविधा में होने वाले। पर जिनके परसेंटेज क्लियर आ गए, आप उस लेवल पे जाओगे। जो फ्रेंड्स है वही सोच के होना है, और सोच बढ़ती है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और नेगेटिव में आ गए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। पूरी दुनिया नेगेटिव है और तुम आखिर पॉजिटिव हो, तुम क्या कर सकते हो? कितने बार अपोज कर सकते हो? नहीं, थक जाते हैं हम। इसलिए परसेंटेज भी मायने रखता है, इसलिए मायने रखता है कि पूरी जिंदगी उससे प्रूव नहीं होने वाले, पर आगे का रास्ता आसान होने वाला है। इतना भी ध्यान में रखो और खुद की पढ़ाई करो। बाकी ज्यादा बात नहीं करना है। जय हिंद।